Welcome you all in the ACP program, Year 1, Module 1 in Session 5. Today's topic is Living in Harmony. सद्भावना के साथ रहना. In this session, Unit 1, we learn about how do people live in harmony. So let's explore some examples. In this exploration, Mohan lives in harmony by accepting differences with others. In his family, he accepts that his grandparents have different likes and dislikes from him, but he shares with them about his modern ways and learns from them about their traditional ways. In his college mates are from different parts of India with different languages, food habits and dressing, etc. He has made many friends and is happy to learn their customs. In his locality, his neighbors belong to different religions and states. He respects their beliefs and they take part in each other's celebrations. तो देखिए यहाँ पर different places थे जहाँ पर मोहन का अगर हम बिहेवियर देखें, उसका व्यवहार देखें तो सब जगह वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, अर्थात उनके साथ सद्भावना के साथ रहता है. What I can learn from this exploration? Like Mohan, I too can live in harmony by accepting differences with others. This is the question for you. What kind of differences do you see in others in your family, in your locality and in your college? And how do you accept these differences? Please share some concrete examples. In this exploration, meet Kiran. Kiran lives in harmony by showing respect to any person she is dealing with, irrespective of whether they are senior or junior, of higher or lower status, richer or poorer, younger or older, friend or stranger. So see her behavior with teachers. Good morning, ma'am. Shall I carry your books for you, ma'am? With the school cleaners. Good morning. Shall I help you move the bucket so that it doesn't block people's way? With an elderly stranger who is crossing the road slowly. Uncle, don't worry. Take your time. It is safer to walk slowly when crossing the road. And with her younger brother. Rohan, I am really tired and thirsty. Can you please bring me a glass of water? So यहाँ आपने देखा कि किरण हर सिचुएशन में और हर प्लेस पर और अलग अलग लोगों के साथ जो भी बिहेवियर करती है वो उसका बहुत अच्छा है. वहाँ पर अगर उसने अपनी मैम के साथ जिस तरीके से अपनी मैम को ट्रीट किया, उसने क्लीनर को भी उसी तरीके से ट्रीट किया, तो उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है. ठीक है, जिस तरह से उसने अपने भाई के साथ बिहेव किया जिसे वो अच्छे से जानती थी, बिल्कुल सेम बिहेवियर उसने ऐसे स्ट्रेंजर के साथ भी किया जिसकी वो मदद कर सकती थी. लेकिन यहाँ आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप किसी भी स्ट्रेंजर की मदद करें जहाँ पर आपको खतरे का भी प्रॉब्लम हो सकती है. यानी हमें देखना है कि जेन्युइनली वो वाकई में किसी मदद वो चाहिए उसे या नहीं, तभी हम उसकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं. In this exploration, unlike Kiran, Suman shows respect only to people whom she feels are not inferior to her in some way. Okay, in first situation, see here, with teachers, good morning ma'am, shall I carry your books for you ma'am? And with the school cleaner, hey you, move your dirty buckets from here, it's blocking our way. And now with the elderly stranger who is crossing the road slowly, if you can't walk fast, please move out of the way. And with her younger brother, you are younger, so you have to do what I tell to you. Go get me a glass of water. So यहाँ आपने सुमन का बिहेवियर देखा जो कि किरण से बिल्कुल डिफरेंट था. किरण वहाँ पर किसी को भी अपने से इन्फीरियर नहीं मान रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुमन सिर्फ अपनी टीचर के साथ ही
अच्छे से पेश आ रही है, अच्छे से बिहेव कर रही है, अदर उन तीनों प्लेसेस में, सिचुएशन में जहाँ किसी ना किसी तरीके से वो उससे इन्फीरियर है, जैसे वो क्लीनर को, स्कूल क्लीनर को इन्फीरियर समझ रही है, इसी तरह से स्ट्रेंजर वो समझती है कि वो मुझे जानता ही नहीं है, तो उसकी तरफ कोई रेस्पेक्ट वो समझती ही नहीं है कि मैं शो करूँ, और बिल्कुल सेम तरीके से वो भाई जो उसका छोटा है उससे, तो वो भी उसे इन्फीरियर लगता है अपने आप से। तो यहाँ पर आपने इन दोनों बच्चियों का बिहेवियर देखा जो कि टोटली डिफरेंट था एक दूसरे से। In this exploration, the question for you: how does Kiran's way of dealing with people lead to harmony? And the next question is: how should Suman change her behavior? Share concrete examples of what you would recommend to her. So, like Kiran, I too can live in harmony by showing respect while dealing with others. Thus, I too can awaken my possibility of living in harmony by accepting differences with others and by showing respect irrespective of others' status. Here, meet Pritam. Pritam shows concern for others. Pritam shows concern for others in family. Pritam shows concern for the health and comfort of his grandparents. When his brother's best friend left the city, even though it didn't matter to Pritam, he left for his brother's loneliness and spent extra time with him. ठीक है, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी तो वो कंफर्ट का, उनकी हेल्थ का, उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन साथ साथ जब उसका भाई अकेला पड़ता है, उसके फ्रेंड्स कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो उसे भी पूरा सपोर्ट करता है। ठीक है, सो व्हाट इफ यू डिडंट शो concern for others in your family but were inconsiderate towards them, then how would this lead to disharmony in your family? Explain with concrete example. तो अगर आप अपने जो घर में, अपनी फैमिली में जो लोग होते हैं, जो दूसरे लोग, उनकी तरफ अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, दैट मीन्स आप उनकी परवाह ही नहीं करते हो, ठीक है, उनका ध्यान रखने की आप आवश्यकता महसूस ही नहीं करते हो, तो आप किस तरह से उसे डिसहार्मनी में रख सकते हो अपनी फैमिली के लिए? तो एक तरह से आप उस पर एग्जाम्पल्स करके बताइए। प्रीतम shows concern for a stranger in trouble. When out with his friend, they show a foreigner who was lost and in trouble because he didn't know the language. Pritam and his friend helped the foreigner translate on his behalf and helped him get back to his hotel. They made a new friend. So, why it is important to respond with empathy and concern when you see someone in trouble, and even if it is stranger? How will this lead to harmony? तो अब आप बताइए कि क्यों ज़रूरी हो जाता है हमें सहानुभूति दिखाना या उसकी तरफ कुछ कंसर्न दिखाना कि जिससे अगर कोई मुसीबत में है हम उसकी हेल्प कर पाएँ, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, दैट मीन्स आप उसे जानते ही क्यों ना हो। तो आपके क्या विचार है इसमें कि क्या आप इसे हार्मनी में रखेंगे या ये हार्मनी में कैसे आ सकता है? प्रीतम shows concern and is willing to serve neighbor even though she fights with him. So here you can see then Pritam's neighbor was an elderly lady who lived alone. She was constantly complaining and fighting with his family. One day Pritam heard that she was very ill. He realized that being alone, she would have to no one to care for her. He went to her home and took care of her. So after that day, their relationship changed. She began looking forward to meeting and talking with Pritam. आपने देखा कि आपका एक कंसर्न बिहेवियर, आपकी दूसरों के प्रति एक थोड़ी सी हेल्प और उसकी तरफ कंसर्न दिखाना ही दूसरे लोगों के बुरे बिहेवियर को, उसके बुरे बर्ताव को भी बदल सकता है। So what happened when even though someone acts badly with you, you respond with kindness and concern their time of trouble? How does this lead to harmony? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि वाकई में ऐसा होता है कि हम अपने अच्छे बिहेवियर से किसी के बुरे बिहेवियर को बदल सकते हैं, और क्या ये भी हमारे सद्भावना में ही आता है कि हम दूसरों के साथ सद्भावना से रहते हैं? Thus, I too can awaken my possibility of living in harmony
by accepting differences with others, by showing respect irrespective of the other's status, and by showing concern for others. Meet Jisha. She shares in the responsibilities of the communities she is part of. Jisha shares in the responsibilities of her family. On returning from college, Jisha helps in the daily housework. So what would happen if different family members did not share in the responsibility of the household? Why would this lead to disharmony in the family? तो यहाँ जीशा अपनी फैमिली में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें अच्छे से निभाती है. ठीक है, तो आप सोचिए कि क्या होगा अगर फैमिली का हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा जो उसके घर की तरफ होनी चाहिए. और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या वो डिसहार्मनी की तरफ जाता है, यानी कि वो सद्भावना के साथ अपने परिवार में नहीं रहता. तो आप सोचिए इस बारे में. द टीचर ऑफ द कम्युनिटी स्कूल in Jisha's locality had to leave suddenly because of a family crisis. This put the member of her community on the school committee in trouble. So Jisha volunteered to help the community school by teaching on weekends. तो जैसे जीशा ने अपनी फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा निभाया, उसी प्रकार से वो अपनी कम्युनिटी में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाती है. जब उसे लगता है कि अचानक ही कुछ ऐसी फैमिली क्राइसिस हुई कि टीचर को वहाँ से जाना पड़ा, तो उसने आगे बढ़कर उस कम्युनिटी में, उस स्कूल में टीचिंग का फैसला लिया अपने फ्री टाइम में. ठीक है, क्योंकि वो भी कॉलेज जाती थी. सो लाइक जीशा, व्हेन पीपल रीच आउट एंड शेयर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर कम्युनिटी, हाउ डज इट लीड टू ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड हार्मनी इन द कम्युनिटी. सो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जिस तरह से जीशा ने साझा की जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर किया लोगों के साथ, कि वाकई में क्या वो एक बहुत हाई इंटीग्रेशन और हार्मनी को दिखाता है, जो कि हमें करना चाहिए. आपके क्या विचार हैं इस पर? सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, thus I too can awaken my possibility of living in harmony by accepting differences with others, by showing respect irrespective of the other's status, by showing concern for others, by sharing the responsibilities of the communities one is part of. In first unit, we learned about how we can live in harmony. But in second unit, we will learn why it is important to live in harmony. So come, let us explore this through some case examples. Here you can see Komal's class is preparing for the school exhibition. They are allotting work and roles. So disharmonious response क्या होगा, जो कि कुणाल का है. Let the girls take charge of the cleaning and craft work. They will be better at that. We will take charge of making the posters and exhibitions, models. That's our kind of work. सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुणाल क्या कहना चाह रहा है कि लड़कियाँ सिर्फ क्लीनिंग और क्राफ्ट वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए वो वही काम करेंगी, और जो और काम है पोस्टर्स मेकिंग का, एग्जीबिशंस के लिए मॉडल्स वगैरह बनाने का, वो उसने लड़कों को दिया. तो दैट मीन्स वो गर्ल्स और बॉयज़ के काम में डिफ्रेंशिएट कर रहा है. And here the harmonious response by Vikas. Let's form mixed teams taking up different responsibilities so that all of us can get a chance to do different kind of work. तो यहाँ विकास बहुत अच्छे से एक टीम बनाना चाहता है, मिक्स टीम बनाना चाहता है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हों, और दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को साझा कर सकें, दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ बांट सकें. सो हियर the question is, what will be the effect of Kunal's or either Vikas thinking on Komal's confidence to do all kinds of work? ये दोनों की सोच अलग थी ना, तो दोनों का कोमल के कॉन्फिडेंस पर, उसके आत्मविश्वास पर क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज
what will be the effect of Kunal's or either Vikas thinking on the opinion held by the boys what about what girls can do or cannot do? तो यहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कुणाल तो एक तरह से ये कहना चाहता है कि कुछ जो काम होता है वो सिर्फ गर्ल्स से ही कंसर्न रहते हैं, कुछ बॉयज़ से। लेकिन वहीं पर अगर हम विकास की बात करें तो विकास इस तरह से नहीं मानता, वो मानता है कि किसी भी काम को कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कोई एक स्पेसिफिक वर्क नहीं बता रहा है। लेकिन आप भी इस पर अपने विचार साझा कीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, जो आपने सोचा आपका भी आंसर मैच करता है क्या, कि जो फर्स्ट सिचुएशन होगी, जो कुणाल का जो डिसहार्मनियस रेस्पॉन्स था गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, तो यहाँ पर जो कोमल होगी वो अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लूज़ कर देगी। ठीक है, और वो जब भी रिक्वायर कोई सिचुएशन होगी उसमें वो काम नहीं कर पाएगी ढंग से, एंड शी विल बिकेम डिपेंडेंट ऑन बॉयज़ फॉर मैनी काइंड्स ऑफ वर्क एंड शी विल फील दैट शी कांट मैनेज दैट काइंड ऑफ वर्क। ओके, बट नाउ अगर हम बात करते हैं एक हार्मनियस रिस्पॉन्स में जो कि विकास ने दिया, सो कोमल विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क एज रिक्वायर इन एनी सिचुएशन एंड शी विल बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी इंडिपेंडेंट एंड टेक ऑन एनी वर्क इफ नीडेड। वहीं पर आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जहाँ पर कि कुणाल का जो डिसहार्मनियस रिस्पॉन्स था, वहाँ क्या होगा? The boys in the class develop the belief that girl can do some things and cannot do some things, so will happen discriminating accordingly। तो एक तरह से ये भेदभाव आप कह सकते हैं। ठीक है, ये पैदा करेगा गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कि इन दोनों के जो काम हैं, जो वर्क हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक वर्क को कर सकती हैं, यानी कि गर्ल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्क्स होते हैं और बॉयज़ के लिए भी। ठीक है, लेकिन वहीं हम अगर आते हैं विकास पर, जो विकास का हार्मनियस रिस्पॉन्स था, तो वहाँ हमारा जवाब क्या होगा कि द बॉयज़ इन द क्लास विल बिकम ओपन टू द आइडिया दैट गर्ल्स आर एज कैपेबल एज दैम एंड विल डेवलप एन इक्वल रेस्पेक्ट फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़। तो यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी होगी उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और आगे यही जब बॉयज़ और गर्ल्स बड़े होंगे तो वो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक अच्छी सोसाइटी को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, दोनों के जो ब्रेन है, जो माइंड है, उसमें एक अच्छी बात सेट होगी कि दोनों ही हर एक काम को करने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करेंगे इस तरह से, तथा एक दूसरे को अपने बराबर भी समझेंगे। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। दिस इज BBC न्यूज़ इंडिया, न्यू दिल्ली, 11 February 2014। ओके, हेट क्राइम्स अगेंस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो उन्होंने पूरी एक तरह से जुलूस निकाला था इसमें, जैसे 2 स्टूडेंट्स वर बिटन अप ऑन मंडे इन व्हाट वाज डिस्क्राइब्ड एज हेट क्राइम्स अगेंस्ट पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट देखिए, निंदो तानिया, अनदर स्टूडेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट वॉज बिटन ऑन 5th February बाय द शॉपकीपर्स हु मेड फन ऑफ हिज appearance and he died due to injuries। तो आप समझते हैं कि ये न्यूज़ अच्छी है। ये तो हमारी अनसोशलाइजेशन को बढ़ाती हैं, हमारा सामाजिक दायरा जो होता है वो बहुत छोटा करती हैं, यानी असामाजिकता को फैलाते हैं। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सच डिसहार्मनियस एक्शंस ऑन? फर्स्ट इज व्हाट अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हु आर लिविंग इन दैट सिटी, व्हाट दे फील। क्या महसूस करेंगे जो और वहाँ बच्चे रह रहे होंगे? वो तो बहुत अनसेफ फील करेंगे ना। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जो अलग अलग स्टेट के बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं, उनके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो और बच्चों के साथ उनके संबंध होंगे, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? तो दैट मीन्स उन्हें भी अब वो जो स्टेट होगा वो सेफ़ नहीं लगेगा, वो चाहेंगे कि हम अपनी ही स्टेट में रहें तो ज़्यादा बेटर है। And the third one is the strength and unity of our Indian nation। तो क्या ये हमारा जो भारतीय राष्ट्र है, क्या इसकी जो यूनिटी है, जो हमारी ताकत है मिलजुल कर रहने की, क्या उस ताकत पर ये असर नहीं डालेगा? तो आप भी इस बारे में सोचिए, अपने डिस्कशन को ओपन कीजिए और कोशिश कीजिए अच्छे से एग्जाम्पल मुझे देने की। सो नाउ सी दिस एक्सप्लोरेशन।
In this town, the Hindu and Muslim communities take care of each other's convenience. They adjust their loudspeaker volumes so that the prayers of the other community are not disturbed. They coordinate their procession timings so that the things go smoothly. They share a common ground for big meetings, etc. ये कितनी छोटी छोटी चीज़ थी कि जो हिंदू और मुस्लिम, जिसमें हम मानते हैं दोनों कम्युनिटीज़ में हमेशा कोई ना कोई भेदभाव, कोई ना कोई अलगाव रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो जगह, ये स्थान है, यहाँ पर कोशिश की जाती है कि वो एक दूसरे की सुविधाओं को समझें। ठीक है, लाउड स्पीकर इतना भी तेज़ ना हो कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब करे, या दूसरे की प्रेयर, एक की अगर प्रेयर हो रही है तो वो दूसरे के लिए परेशानी का सबब बने। ठीक है, साथ साथ वो टाइमिंग को भी कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस टाइम मंदिर में कुछ हो रहा है तो वो मस्जिद में ना करें, मस्जिद में है तो मंदिर में ना करें। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो बहुत स्मूथली जा रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उनकी मीटिंग्स होती हैं तो उसके लिए भी वो सिर्फ एक कॉमन ग्राउंड को ही शेयर करते हैं। अलग अलग कोई छुप कर या इधर उधर जाकर उनकी मीटिंग्स नहीं होती, एक ही जगह पर वो मीटिंग्स को शेयर करते हैं अपना। So if all communities across India followed this example of harmony, how could it help our country? तो अब आप ही सोचिए कि क्या इसी तरह के अगर हम प्लेसेस बनाएं, या इस तरीके से ही हम एक दूसरे के साथ बिहेव करें, व्यवहार करें, हार्मनियस बिहेव करें, तो कुछ एग्जांपल आप भी ऐसे ही बताइए कि हम क्या एक अच्छी कम्युनिटी को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम यूनिट 3 पर, जिसमें एक क्विक क्विज है आपके लिए। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिवन द आंसर फॉर ऑल। आपके सामने एक क्विक क्विज है जिसमें कि 11 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इनमें से कौन सी सोच आपको सद्भावना की ओर लेकर जाती है और कौन सी सोच आपको असद्भावना की ओर लेकर जाती है। तो आपके सामने यहाँ पर चॉइस के लिए 2 बटन दिए हुए हैं, आपको किसी एक को ही यहाँ पर टिक करना है। फिर अगर आप क्यों का उदाहरण देना चाहें, यानी आप बताना चाहें, इसका रीज़न बताना चाहें, कारण बताना चाहें, तो वो भी आप लिखकर सबमिट कर सकते हैं। चलिए, ये है आपकी क्विज़ के आंसर्स। आप उसे मैच कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स अपने लिए सहेजे और कितने प्रश्न आपके सही थे। तो वही आपकी सद्भावना और असद्भावना को दिखाएंगे। तो आज के इस सेशन में हमने सीखा, ये उस सबका सारांश है आपके सामने, कि हम सभी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। कैसे? दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके, दूसरों के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करके, उनके स्तर की परवाह किए बिना, अर्थात वो बड़े हैं आपसे, छोटे हैं, या आप कह सकते हैं कि उम्र में बड़े छोटे या स्टेटस में बड़े छोटे, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर अपने समुदाय की जिम्मेदारियों को बांटकर, चाहे आप परिवार में हो, चाहे किसी कम्युनिटी में हो, या अपने वर्क प्लेस में हो, यानी कि जो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है उसे अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ साझा करके। तो आज इस जागरूक नागरिक कार्यक्रम अर्थात अवेकन सिटीजन प्रोग्राम ईयर 1 मॉड्यूल 1 के सेशन 5 का हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे अगले सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।